নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর এক শক্তিশালী ভারত গঠনের ভাবনা আর তার সঙ্গে আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন এবং পথ চলাকে এক সূত্রে বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 23শে জানুয়ারি মানে বাঙালির কাছে এক আবেগের দিন, কিন্তু সেই আবেগকে ঘিরে জাতীয় মঞ্চে তৎপরতা সেভাবে কোনোদিনই লক্ষ্য করা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দিক দিয়ে তার সমস্ত পূর্বসূরিদেরই যেন হারিয়ে দিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সন্ধ্যাকাশে তখন গমগম করছে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠ, যাতে ভেসে আসছে সুভাষের এক শক্তিশালী ভারত গঠনের স্বপ্ন। नेताजी ने कहा था, आज আমাদের কেবল একটি ইচ্ছা থাকা উচিত। ভারতে इच्छुक जाते भारत बांटते पारे, यानी हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हमारा भारत बच पाए, भारत आगे बढ़े। हमारा भी एक ही लक्ष्य है, अपना खून पसीना बहाकर देश के लिए जिए, अपने परिश्रम से, अपने इनोवेशन से देश को आत्मनिर्भर बनाए। नेताजी कहते थे, निजेर प्रोति सात होले सारे, बिक्षेर प्रोति केऊ असोद होते पारबे ना। अर्थात अगर आप खुद के लिए सच्चे हैं तो आप दुनिया के लिए गलत नहीं हो सकते। हमें दुनिया के लिए बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने होंगे, कुछ भी कमतर नहीं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाले प्रोडक्ट। नेताजी ने हमें कहा था, स्वाधीन भारतेर स्वप्ने कोनो दिन आस्था हारियो ना, বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যে ভারতকে পরাধীনানন্তর श्रृंखलाए बेगे राखते समर्थ होवे। यानी आजाद भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोइए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांध करके रख सके। वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड़ देशवासियों को अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके। শনিবার দুপুরবেলায় অসম থেকে এসে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকে সোজা রেসকোর্স হেলিকপ্টারে, এরপর রেসকোর্স থেকে গাড়ির কনভয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ছোটে এলগিন রোডে নেতাজি ভবনে। সেখানে পৌঁছে নেতাজিকে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ঘুরে দেখেন নেতাজি সেই বিখ্যাত গাড়ি, যাতে চড়ে তিনি মহানিষ্ক্রমণে গোমো স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এছাড়াও নেতাজির ঘর এবং স্টাডিও পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। নেতাজি ভবন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসেন প্রধানমন্ত্রী। তখন তাকে দেখতে হাজির জনতার মধ্যে মোদি মোদি ধ্বনি। এলগিন রোডের কর্মসূচি শেষ করেই প্রধানমন্ত্রী পৌঁছন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নেতাজিকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনে। সেখানেও ন্যাশনাল লাইব্রেরি পরিদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজিকে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন তিনি। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকেই শটানে প্রধানমন্ত্রী যোগ দেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুষ্ঠানে। সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের সম্বর্ধনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজির নামে ডাক টিকিট এবং সংকলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি তুলে ধরেন নেতাজির দর্শন এবং নবভারত গঠনের স্বপ্নকে। সুভাষ বাবু कहते थे, আমাদের সবচেয়ে বড় জাতীয় সমস্যা হলো দারিদ্র অশিক্ষা রোগ বৈজ্ঞানিক উৎপাদন। যে সমস্যার সমাধান হবে केवल मात्र सामाजिक भावना चिंता द्वारा। अर्थात हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और वैज्ञानिक उत्पादन की कमी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाज को मिलकर जुटना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যে দেশের নিপীড়িত এবং অসহায় মানুষদের জন্য সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন সে প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মোদি। आज देश पीड़ित, शोषित, वंचित को, अपने किसान को, देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर एक गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है।
देश के किसानों को बीज से बाजार तक आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। खेती पर होने वाला उनका खर्च कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक युवा को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए देश के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में देश भारत में एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे बड़े संस्थान खोले गए हैं। आज देश 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू कर रहा है। দেশ আজ এক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে শুধু এগিয়ে চলেছে না, সেই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশকেও এক অতিমারিতে ভ্যাকসিন সরবরাহ করছে। এমন এক নবভারতকে নেতাজি আজ প্রত্যক্ষ করতে পারলে সত্যি খুশি হতেন বলেই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। जो नया भारत आकार ले रहा है, उसे देख नेताजी को कितनी संतुष्टि मिलती है। उन्हें कैसा लगता जब वो दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज में अपने देश को आत्मनिर्भर बनता देखते। उन्हें कैसा लगता जब वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, शिक्षा में, मेडिकल सेक्टर में भारतीयों का डंका बजते देखते। आज राफेल जैसे आधुनिक विमान भी भारत की सेना के पास हैं और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान भारत खुद भी बना रहा है। जब वो देखते कि आज उनके देश की सेना इतनी ताकतवर है, उसे वैसे ही आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जो वो चाहते थे, तो उन्हें कैसा लगता। आज अगर नेताजी ये देखते कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से, इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते। जब वो देखते कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। साथियों, नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते রাতों की রাতों बीत যায়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যার জন্য তিনি লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারতেন। এর জন্য সমস্যার সম্মুখীন হতেও পিছপা হতেন না। এটাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। विश्व युद्ध के समय पर जब साथी देश पराजय का सामना कर चुके थे, सरेंडर कर रहे थे, तब नेताजी ने अपने सहयोगियों को जो बात कही थी, उसका भाव यही था कि दूसरे देशों ने सरेंडर किया होगा, हमने नहीं। अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने साथ भगवत गीता रखते थे, उनसे प्रेरणा पाते थे। अगर वो किसी काम के लिए एक बार आश्वस्त हो जाते थे, तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रयास करते थे। उन्होंने हमें ये बात सिखाई है कि अगर कोई विचार बहुत सरल नहीं है, साधारण नहीं है, अगर इसमें कठिनाइयां भी है, तो भी कुछ नया करने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं, तो आपको उसे प्रारंभ करने का साहस दिखाना ही चाहिए। एक बार को ये लग सकता है कि आप धारा के विपरीत बह रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य पवित्र है, तो इसमें भी
हिचकना नहीं चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया कि आप अगर अपने दूरगामी लक्ष्यों के लिए समर्पित है तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। 2014 সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের কথা শুনিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর কেটে গিয়েছে অনেক কটা বছর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত নিজেকে আরও শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। নিরাপত্তা পরিষদেও ভারত এক শক্তিশালী দেশ হিসেবে এখন আরও বেশি মর্যাদা পাচ্ছে। দেশকে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে নিয়ে যেতে মোদী সরকার নিয়েছে নানান পরিকল্পনা। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক শক্তিশালী ভারত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন। তার নেতৃত্বে দেশ এমনই এক লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে বলেই এদিনের কলকাতা সফরে বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এশিয়ানেট নিউজ বাংলা।